Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss about comparisons of adjective and adverb. Now, you might be thinking, ma'am, this chapter is already done, and why you are taking this again? See, beta, from coming next week, you will be having your first periodic. So in that periodic, as you have got your syllabus, first four chapters of grammar will be coming, right? So along with the passage, diary and a letter. Okay, so passage will be unseen, that you all know. जो सेम आपको मैंने पढ़ाया है, that is not going to come. A different passage is going to come, that is an unseen passage. Okay, but diary writing and letter writing, yes, there will be these two also. Okay, with a different topic, as you all know. So this particular video, in this lecture, we are going to revise, recall what we have studied in your previous lectures while studying this particular topic. Okay, तो मैंने दोनों ही चैप्टर्स का लिया है, हम दो चैप्टर्स करके रिवीजन करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारा चैप्टर था कौन सा, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एंड देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स एज वेल, है ना, सेकंड चैप्टर। तो यहाँ हम दोनों को डिस्कस करेंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस समथिंग एल्स, वी विल रिवाइज समथिंग एल्स। ओके, तो ये आपको रिकॉल भी हो जाएगा, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है ना, तो उसको आप सॉल्व करने में, आइडेंटिफाई करने में, है ना, आपको बहुत ही इजी होगा। ओके, सो आप अपना जो बुक है और जो मैंने नोट्स आपको पढ़ाए हैं, है ना, चाहे वो आपके जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिख के दिए थे, वाइल फॉर्मिंग अ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, वो आप फॉर्मूलाज अपने पास निकाल के रखिए, क्योंकि दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक एज वेल। पूरा वैसा नहीं है, एडिशनल मैंने आपको करवाया है, लेकिन रिलेटेड उसी से है, तो आपको थोड़ा वो भी पढ़ना है, थोड़ा ये भी पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आए कि वाइल फ्रेमिंग अ कंपैरेटिव डिग्री और अ सुपरलेटिव डिग्री, व्हाट शुड बी यूज एंड व्हाट शुड बी एमिटेड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बाय द फर्स्ट thing where we study the comparison of adjectives. Okay, so comparison of adjective is basically divided into three parts. We all know that is the positive degree, right, comparative degree, and third one is the superlative. So these are the degrees where we study. So degrees means what? It's a comparison. ओके, क्या करते हैं हम डिग्रीज का मतलब क्या है कि हम एक चीज़ को दूसरी से ऊपर सुपीरियर बताते हैं, और उन दोनों से भी बेहतर अगर हमारे पास है तो फिर वो सुपरलेटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव डिग्री जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर वर्ड को बता रहे हैं, हाईलाइट करते हैं कि हाँ ये उसमें क्वालिटी है, या ये पर्टिकुलर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, उससे कुछ बेहतर होता है, तो हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर। एंड थर्ड, सुपरलेटिव इज नथिंग बट विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट, विच इज़ द बेस्ट अमंग ऑल, right? So this we have already studied in your lower classes as well, and in your previous classes where we have discussed about this chapter. Okay, so what is given here? See, there are these three sentences given over here. Mohan's mango is sweet, Hari's mango is sweeter than Mohan's, Shyam's mango is the sweetest of all. So as you can see, in the positive degree, only Mohan's mango is sweet. So here it is telling just about Mohan's mango, that it is sweet in taste, है ना, वो कैसा है, बस मीठा है, ये बताया गया है। But in comparative it has been compared with whom's? Hari's mango. So Mohan's mango has been compared with whom? Hari's mango. That is why it has become what? Sweeter, right? But when it comes to all mangoes, when this Mohan's mango was compared with all the mangoes that are present over there, so that degree, that particular word becomes what? Sweetest. बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले जब हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे थे, तो हमने एक चीज़ को सिर्फ प्रेज किया, या उसको सिर्फ एक हम ये कह सकते हैं कि हाईलाइट कर बताया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है ना, ये चीज़ अच्छी है, ये स्वीट है। लेकिन जब दो चीज़ों का कंपैरिजन आया, तब हमने क्या किया, उन
उसको स्वीटर बनाया, ER लगाकर हमने क्या कर दिया, उसका कंपैरेटिव फॉर्म जो है वो फ्रेम किया। लेकिन जब हमने उसे सभी चीज़ों से कंपेयर किया, जितने भी मैंगोज वहाँ रखे हुए थे उनसे जब हमने कंपेयर किया तो वो क्या बन गया, EST लगाकर हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सो व्हाट इट सेज, द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री, द एडजेक्टिव स्वीटर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री एंड द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज इन व्हाट, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, ये एक एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म है ना। व्हाट इट सेज दैट इट इज एन सिंपल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। इट डिनोट्स जस्ट व्हाट, द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी। ओके, किसी की क्वालिटी को सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, उसका मेयर एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। हम किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, ना हम उसे ये बता रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ ये इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। ओके, बट when we talk about comparative degree, it will be denote as a higher degree compared to whom, positive degree, है ना। अब वहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट वन एंड दी सेकेंड वन। ओके, तो चाहे फिर यहाँ आप देखिए, लक्ष्मण इज ओल्ड मैन। अब लक्ष्मण इज ओल्ड मैन, ये ओल्ड क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। यश इज ओल्डर दैन लक्ष्मण, तो यहाँ देखिए दो लोग आ गए तो क्या बन गया, ओल्ड बिकम ओल्डर। सो ओल्डर विल बिकम ओल्डेस्ट व्हेन इट इज गोइंग टू कंपेयर विथ whom, with a certain amount of people। ओके, तो अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल से अगर हम कंपेयर करें तो फिर हम ये बता सकते हैं कि XYZ पर्सन इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल दीज। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्रीज कैसी होती हैं, चेंज हो रही है। हम पहले सिर्फ क्या बता रहे हैं, एक मेयर एग्जिस्टेंस बता रहे हैं किसी क्वालिटी का। ओके, देन वी आर कंपेयरिंग इट एंड देन वी आर टेलिंग अबाउट द सुपरलेटिव फॉर्म। ओके, द हाईएस्ट डिग्री। सो सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स व्हाट, इट्स डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड इज यूज मोर दैन टू थिंग्स। कहाँ पर, जहाँ दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो, ओके, वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है जहाँ पर हम फ्रेम कर सकते हैं हमारी डिग्रीज को। हमें फाइंड आउट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाती है। जनरली हम ER या EST लगाकर कंपैरेटिव फॉर्म करते हैं और ये सबसे ईजीएस्ट वे भी है। बट सभी के लिए आपको पता है कि सभी वर्ड्स के लिए, सभी एडजेक्टिव्स के लिए ER और EST लगाना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो कहीं जहाँ पर एडजेक्टिव का फॉर्म नहीं बदलता है, चेंज नहीं होता है, वहाँ हम कहीं पर मोर लगाते हैं या फिर मोस्ट लगाते हैं टू फॉर्म अ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं और यहाँ पर क्या दिया हुआ है। आपको याद होगा मैंने आपको वन सिलेबी वर्ड बताया था, है ना, कि अगर वन सिलेबी वर्ड हो तो हम क्या लगाते हैं, और वो अगर कंपैरेटिव फॉर्म में हो तो हम क्या लगाते हैं, जो भी वर्ड दिया हुआ होगा। सपोज यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ओल्ड ही ले लेती हूँ, है ना, ओल्ड ये वन सिलेबी वर्ड है। ओके, तो जब हम कंपैरेटिव फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम या तो ER लगाते हैं, है ना, किसको फॉर्म करने के लिए, कंपैरेटिव, और EST लगाते हैं किसके लिए, सुपरलेटिव के लिए, ओल्डेस्ट। तो यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं लाइक बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ER लगा है कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए और EST लगा है सुपरलेटिव फॉर्म को फ्रेम करने के लिए। अब ये मैंने आपको क्या बताया था, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ वन सिलेबी वर्ड के लिए, है ना, जहाँ पर हमारे पास मोर देन वन कंपैरिजन हो या मोर देन टू कंपैरिजन्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं तब। Most adjectives of one syllable and some of more than one form of the comparative by adding ER and superlative by adding EST. That's what I said to the positive degree. Okay. So when the positive degree ends in E, अब देखिए, अब कोई ऐसा वर्ड है आपके पास, जैसे यहाँ पर देखिए फाइन। अब यहाँ पर ये वर्ड यहाँ E के साथ एंड हो रहा है ना। तो व्हाट इट सेज कि अगर ऐसा कोई पॉजिटिव डिग्री का वर्ड आपके पास है जिसके एंड में क्या होता है, E लगकर आता है, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म में सिर्फ हम R लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ER ना लगाते हुए सिर्फ हम R लगाते हैं। ओके, और जब हमें सुपरलेटिव फॉर्म करना है तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लगाते हैं, EST
लगाते हुए क्या लगाते हैं, सिर्फ एस टी, ओके, ई एस टी, ये हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री में ही लास्ट में ई दिया हो तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म में आर लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म के लिए हमें सिर्फ एस टी लगाना पड़ता है, ओके। तो ये बहुत ही ईजी है टू फ्रेम एंड टू फाइंड आउट, ओके। नाउ इट सेज व्हेन दिस positive degree is one syllable and it ends with single consonant, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ऐसा वर्ड है पॉजिटिव डिग्री में जो वन सिलेबल हो, ओके, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एंड होता है किसके साथ, एक सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ। तो जब आप कोई पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हो तो ये वाला जो कॉन्सोनेंट है ये क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है। तो कंपैरेटिव फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, डबल जी ई आर, बिगर। सुपरलेटिव फॉर्म में भी क्या बन जाएगा, इसका डबल द फॉर्म, ओके, बिगेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देखिए बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, लाइक हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, है ना, फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो यहाँ सभी वर्ड्स में आप क्या नोटिस करेंगे कि जो कॉन्सोनेंट दिया हुआ है वो कैसा हुआ है, इट गॉट डबल्ड। तो एक सिलेबल वर्ड होगा लेकिन एंड किसके साथ होगा, एक कॉन्सोनेंट के साथ। तब हम क्या करते हैं, वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन वी ऐड ई आर एंड ई एस टी टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझा। अब यहाँ पर ये बहुत ही इजी पार्ट जो है वो दिया हुआ है जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कॉन्सोनेंट वाई दिया है ना, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट वाई दिया है, तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको किससे रिप्लेस करते हैं, वाई को किससे रिप्लेस करते हैं, जब हमें कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है इसको बनाते हैं ट्रायल, है ना, तो आई ई आर इससे रिप्लेस करते हैं। अब ई आर वाई को आपने आई से रिप्लेस किया, कंपैरेटिव है इसलिए ई आर, ठीक है। अब यही ट्राइस्ट, तो आपने क्या किया, आई ई इससे रिप्लेस किया, एस टी यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप अपने लॉजिक से भी आप पढ़ते आए हैं और आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत डिफिकल्ट इसमें नहीं जाएगा कहाँ आपको, जस्ट सी ऑन द पेज नंबर 4, ओके। पेज नंबर 4 में यहाँ देखिए जहाँ पर डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स जो है वो ऐड होते हैं। अब देखिए जनरली जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को जो पॉजिटिव डिग्री में हो, है ना, और वो अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, वहाँ हम ई आर या ई एस टी लगाकर उसको क्या करते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्म करते हैं। अब अगर सपोज करिए कि आपके पास जैसे सपोज यहाँ वर्ड है क्लेवर, तो आप इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करोगे क्लेवरर के साथ, है ना। क्या किया आपने, ई आर लगाया, यहाँ क्या करोगे, क्लेवरेस्ट बनाओगे, ई एस टी ऐड करोगे। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर आपने डबल कंपैरेटिव यूज़ किया, डबल कंपैरेटिव कौन सा होता है, देखिए जहाँ हमारा ये वर्ड चेंज ना हो वहाँ हम मोर देन लगाते हैं ना, तो मोर क्लेवरर दैन, नो वी नेवर से दैट। ये एक कंपैरेटिव है, ये दूसरा कंपैरेटिव है। एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। वैसे ही हम मोस्ट यूज करते हैं किसके लिए, द मोस्ट यूज करते हैं हम, है ना, सुपरलेटिव के लिए। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, है ना, ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, द मोस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड इंटेलिजेंट था वो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री में था, वो चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पर क्लेवरेस्ट ऑलरेडी ये पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में है, तो यहाँ पर द मोस्ट क्लेवरेस्ट लगाना विल बी इनएप्रोप्रिएट, इट इज टोटली इनकरेक्ट, ओके। तो कभी भी हम डबल कंपैरेटिव फॉर्म्स या डबल सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो कभी भी फ्रेम नहीं करते। तो आपको वर्ड्स लिखते वक्त बहुत ही क्लेवरली सोचना पड़ता है कि आप कहीं डबल कोई कंपैरेटिव फॉर्म या डबल कोई सुपरलेटिव फॉर्म तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके। सो ये इम्पॉर्टेंट था, ओके। ऑन पेज नंबर 5 सी द फिफ्थ पॉइंट, दिस फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, okay, or things of the same kind or quality are to be compared, we should use as plus positive
पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, है ना। तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एज वाला मैंने आपको पढ़ाया है ना। इसका मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म भी बताया है कि किस तरीके से फॉर्म करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने पास वो सारे फॉर्मूलाज लेकर बैठे ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको समझ में आए। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉजिटिव डिग्री है जिसके सेंटेंस में ये कह रहा है दिस गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज दैट। ओके, तो ये उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी की वो। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर कैसे है, आप एक तरीके की इक्वालिटी दिखा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज हो रहा है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। अब इसको आप नेगेटिव भी कर सकते हो, नॉट लगाकर आप क्या कर सकते हो इसको नेगेटिव। शी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज दैट। ठीक है, जितनी वो है उतनी ये नहीं है, यानी जितनी है उतनी है ना। ये वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, फ्रेम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये एज प्लस एज। ओके, एज प्लस जो भी डिग्री आपने पॉजिटिव डिग्री फॉर्म की है वो, और उसके साथ एज। तो आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में भी रख सकते हो और एक नेगेटिव स्टेटमेंट के तौर पे भी आप लिख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मैंने एनी अदर भी आपको बताया है कि जब हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना, व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विद एवरी अदर ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, एक चीज़ को बाकी उन जैसे सभी चीज़ों से हम कंपेयर करते हैं, तब हम लगाते हैं एनी अदर। बराबर है, एनी अदर का हम यूज़ करते हैं। जैसे निशा इज इंटेलिजेंट एज एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ओके, उसकी जैसी बाकी लड़कियों जैसी से कंपेयर करके निशा को बता रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, एज इंटेलिजेंट एज एनी अदर। ओके, अब यहाँ पर आपने नो अदर भी पढ़ाया है मैंने आपको, वेरी फ्यू भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो आपको सेंटेंसेस को, जहाँ मैंने आपको वेरी फ्यू का, नो अदर का, मैनी अदर का, मोस्ट का, यहाँ जो सेंटेंसेस बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आपके एग्जामिनेशन, और आगे भी आपको बहुत काम आएंगे। ओके, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ कंपैरेटिव फॉर्म में आप या यहाँ पर मोर दैन लगाकर ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एनी अदर हो, नो अदर हो, वन ऑफ हो। जब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, वन ऑफ, तो ये सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के लिए ही यूज़ होता है। ओके, किसके लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के लिए। हम बोलते हैं ना, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन आई हैव एवर सीन, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग आई हैव एवर हर्ड अबाउट। ओके, यहाँ हम वन ऑफ द किसके लिए यूज करते हैं, केवल सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करने के लिए, कंपैरेटिव को नहीं। ठीक है, तो यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें दी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं, है ना, जहाँ से आपको पता रहेगा कि और भी कौन से फॉर्म हैं जहाँ आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8th पॉइंट में देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री मस्ट नॉट बी यूज एज इफ इट वर इक्वल टू वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री का तब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब वो इक्वल टू हो किसके, वेरी और पॉजिटिव डिग्री के साथ। जैसे ही रोट अ बेस्ट बुक, नहीं, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ही रोट अ बेस्ट बुक, ये एक सेंटेंस है क्या, नहीं, ही रोट अ वेरी गुड बुक। हम हमेशा क्या कहते हैं कि इसने बहुत अच्छी किताब लिखी, एकदम बढ़िया वाली किताब लिखी, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं, इसने बहुत अच्छी किताब लिखी। तो वेरी गुड क्या है, वेरी के साथ आपका क्या लेकर आया है, एक पॉजिटिव डिग्री। गुड आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री। फिर गुड के बाद आपका बेटर, कंपैरेटिव, और बेस्ट क्या आएगा, सुपरलेटिव, है ना। तो कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आया है, इसलिए तब हम सुपरलेटिव इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने इसलिए कहा आपसे कि जब आप इसको पढ़ें इन पॉइंट्स को, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैंने इंक्लूड किए हैं। अब सेकेंड चैप्टर में देखिए, सेकेंड चैप्टर में सिर्फ एडजेक्टिव्स की जगह क्या है, आपका एडवर्ब्स है। ओके, बट यहाँ पर भी आपको फॉर्म कैसे करना है, ER EST लगाकर, यानी जो फॉर्मेट है इट इज़ द सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ एडिशनल आपका क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स एडिशनल
एडिशनल है। जैसे जो हम एडवर्ब में एडजेक्टिव में यूज करते हैं वो हम एडवर्ब्स में यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई, आपको पता है हमारे एडवर्ब्स जो है वो एल वाई के साथ एंड करते हैं, या फिर फुल्ली ये वर्ड लिख कर आता है, तब हम उनके कंपैरेटिव फॉर्म्स में हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आपके पास ऐसे एडवर्ब्स हो जिसका लास्ट में एल वाई या एफ यू डबल एल वाई आ रहा हो, तब हम कंपैरेटिव फॉर्म के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव फॉर्म के लिए मोस्ट लगाते हैं। जैसे यहाँ पर फेथफुल है ना, ये फेथफुली एल वाई फेथफुली, तो ये हम मोर फेथफुली ऐसे बोलेंगे, मोस्ट फेथफुली ऐसे बोलेंगे। बताइए क्या बोलेंगे यहाँ पर। अगर अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ एल वाई लगकर आता है, अब यहाँ ये डिफरेंट हो गया है ना, यहाँ मोर फेथफुली, ही ट्रस्टेड मी मोर फेथफुली साउंड्स वेरी इनएक्यूरेट है ना। फेथफुल, ही इज मोर फेथफुल, ही इज द मोस्ट फेथफुल पर्सन। डिपेंड करता है आपका वर्ड कौन सा है, जहाँ एल वाई लग रहा है वहाँ सिर्फ वहाँ, जैसे क्लेवरली है ना, नहीं क्लेवरली नहीं कहेंगे हम, जैसे हम क्या कह सकते हैं, आपके पास देखिए ब्यूटीफुल ये वर्ड भी आता है ना, या आपके पास में हम बोल सकते हैं कि इजीली है ना, इजीली, मोर इजीली, मोस्ट इजीली। तो जहाँ पर्टिकुलरली एल वाई लग रहा है उस जगह हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो उस बात का आप ध्यान रखिए कि एडवर्ब्स पर्टिकुलरली अगर एल वाई या एफ यू डबल एल वाई के साथ एंड हो रहे हों, तब हमें मोर और मोस्ट का जो है वो यूज़ करना होता है। अब यहाँ कुछ इरेगुलर फॉर्म भी दिए हुए हैं, आपको पता है इरेगुलर फॉर्म क्या होते हैं, जिसका टोटली फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए मच विल बिकम मोर, मोर विल बिकम मोस्ट, लिटिल विल बिकम लेस एंड लेस विल बिकम लीस्ट इन द सुपरलेटिव फॉर्म, लेट विल बिकम लेटर एंड लेटेस्ट। बैडली विल बिकम बैड, विल बिकम व्हाट, वर्स एंड वर्स्ट। लाइकवाइज यहाँ कुछ ये इरेगुलर वेज है जहाँ पर फॉर्म क्या हो रहा है, टोटली चेंज हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट था है ना, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने गुड लिख दिया, ठीक है, तो गुड विल बिकम बेटर एंड बेटर विल बिकम बेस्ट। तो ये इरेगुलर वेज है जहाँ पर हम एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो इसका टोटली चेंज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एडजेक्टिव्स, जहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, यहाँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है एडजेक्टिव्स का फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 12। ऑन पेज नंबर 12 यहाँ देखिए, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली, ये वर्ड्स कैसे बता रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं। जब आपने लास्ट ईयर एडवर्ब्स पढ़ा होगा तब आपको याद होगा उस फ्रीक्वेंसी में हम किसी चीज़ की फ्लूइडिटी बताते हैं ना, बताते हैं कि किस तरीके से कितने फ्रीक्वेंट बार वो चीज़ें हुई हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज़ें हुई हैं। तो उस जगह पर भी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द वर्ब, इफ द वर्ब इज लाइक विथ इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये हमारा टू बी फॉर्म है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बना है, वी वर क्वाइट इन टाइम फॉर द फिल्म, क्वाइट इन टाइम। तो ये क्वाइट क्या बता रहा है कि बिल्कुल लगभग हम पहुँच गए थे है ना। तो यहाँ पर फ्रेम करते वक्त यहाँ हम किसी तरीके का कंपैरेटिव सुपरलेटिव यूज़ नहीं कर रहे हैं। ही इज़ ऑफन एब्सेंट या ही इज़ ऑफ्टन एब्सेंट from the practical classes. So often or often depends upon your pronunciation. I'll leave it up to you how you pronounce. You can say often also, you can say often also. ये बहुत important points हैं that you need to understand them in a very well manner as I have already taught you. Go through the exercise and then check the points that have been given in the chapter. आई होप कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आएगा है ना। कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पर बेस्ड जनरली हमारे क्वेश्चंस आते हैं। डू practice more and more, take exercises
and try to solve them on your own basis, and then recheck them whether they are right or wrong. Okay, it will definitely help you to understand a particular topic in a very good manner. Okay, good day students, take care.